My name is Om. Just a second. Hello. Good evening, everyone. My name is Om. I am an executive member of the Enabling Unit. First of all, thank you for being here, and a special thanks to Mr. Tejasvi Sharma and Dr. Alka Chawla, ma'am. We are very grateful for your association, and thank you for giving us your valuable time. Before we jump to the topic for the evening, for the benefit of the members of the audience, I would like to briefly share about the aim of the Enabling Unit. So essentially, the purpose of this society is to promote inclusion of students on campus and bring awareness and sensitization among students and faculty members. We are also trying to implement the government schemes related to persons with disability. So while we are called the enabling unit, it is a bit of a misnomer. We do not only cater to the persons with disability, but also to the persons without disability. So we look at a wide variety of events, programs, competitions, and seminars where we encourage participation from all students, and in order to further our motto of inclusion. Now coming back to the topic for the evening, on the occasion of International Yoga Day, which is tomorrow, we have made an attempt to highlight the intersection of disability and yoga through this webinar. Yoga is a pressing need for all generations to have a balanced life. And today's topic originates from the prima facie impression that yoga is only for the able-bodied individuals. In order to break this stereotype, we have with us Mr. Tejasvi Sharma. And just to give a brief introduction to sir, about sir. So sir has received numerous accolades as well as academic distinctions in the field of yoga. For example, a PG diploma in yoga studies from Sri Lal Bahadur Shastri, National Sanskrit University. He is also a 3 times world champion in international yoga competitions, and he holds proudly holds the world record of world's most flexible handicapped champion, yoga champion. With that, I would now once again give a warm welcome to our professor in charge, Dr. Alka Chawla, ma'am. Under her able guidance, this has all become a reality, and we have had a great time dispensing our duty as the executive member. Thank you so much, ma'am. Now I would like to humbly request you to please give the welcome address. Thank you, Om. Thank you so much. So we make a start with Om. You know, people think it's a Hindu word, but I think it's very, very secular. There are lots of research also going on which says how the Srishti, how the entire world has started with this world. So with you, thank you so much for asking me to speak on this occasion of the International Yoga Day. So I very, very cordially welcome Mr. Tejasvi Sharma, who is bestowed with the title of Most Flexible Handicapped Yoga Champion in the World. He's going to speak on yoga contemporary developments. I also welcome my erudite faculty and dear students. I'm extremely thankful to Dr. Neha Aneja, who started this entire unit and for organizing this much needed webinar. Before I would like to say a few things, because I believe that yoga is not simply exercising. Yoga is, a control of mind. Yoga is a way of life. Yoga is both a fusion of soul and God. Yoga is skill in the field of work. As we say, yoga karmasu kaushalam. That is, for all of us, it is very, very important. And especially in today's world, which is all full of stress, yoga will develop you emotionally, and it will teach you how to remain unperturbed when extreme happiness is bestowed upon you or when there are unhappy situations. It's a practice, if you do, that relieves it relieves all of us from many of the physical and mental ailments. It will train your mind, your body, your breath, connecting with your spirituality. That is the main goal of yoga.
We have a yoga guru who comes and teaches a few of my friends. And he always, when he gives some points or he's talking, he'll say, uh, बहन जी सांस लीजिए. And that's the time when you realize that while he's doing something, or even the doctor is doing something on you, you suddenly hold your breath. So looking at your breath and imagining how it is going down deep inside you is, I think, very, very important. And yoga, as I said, it is not simply an exercise. Tejasvi is going to tell you many things about it. uh, but there are different kinds of yoga that we keep thinking about and keep knowing about. For example, Bhakti Yoga. Now, you students might feel, what is Bhakti Yoga to do with all of us? What devotion are you talking about? I would just talk about you as students, devotion towards your studies, devotion towards what your aim of life is. There is this Raj Yoga, which one talks about. Raj is basically talking about the king. But let's not talk about the king here. It is inculcating in you as a person, how a perfect, balanced mind you need to create. Karma Yoga, which teaches you how to take right decision, how to get into the right kind of an action. Gyan Yoga, which is something very important for all of us, the knowledge. I'm not talking about God here, but I'm talking about the knowledge that you need to attain, the learning, the purpose of life. Why are you coming to law faculty? What are you learning here? For every, I feel that for every subject, for example, you need to know the jurisprudence of that particular subject, not simply rattle off the acts. Why are you having them? This is something which is very, very important. And today, as Neha and as Om has already told you, that we are going to do away with many of the misconceptions. I actually don't like these words abled and disabled, honestly speaking, because the so called abled may be disabled from mind. They may not be thinking in the right direction. The positive and the negative thoughts that you bring about, this is also a kind of a disability which one has. It's a very stereotype that we keep talking about physical disabilities, and we're not talking about other disabilities which are present in all of us. So, anyway, I also fall in that stereotype and tell you that we have a person with us who's broken all kinds of stereotypes, and he's going to talk to you. And I'll just take one more moment, Mr. Tejasvi, if you allow me. I was reading somewhere that Patanjali, the great sage, he gave 8 elements of yoga. That is, he's going to, I think, tell you yam, that is truth, non-violence, niyam. Why I want to speak about this is because when we say six, the rule, the discipline says it has to start at 6 o'clock. So your friends, your groups, they need to know that we have our Atithi here, our friend here, our alumnus here who's spending time, and he's not getting anything out of it. It's only you who are going to benefit. So all of you must be there in time. So that's the second thing which is very important is niyam. And then comes your asana, the postures that you need to follow. Many times even in class when you sit, this time I'm not taking the class, but in class when you sit in different postures, you will realize that if you follow the right posture of sitting in the class, your mind and body would be such that you will understand the lecture of the teacher better than if you are sitting in an unwelcome posture, I would say. Pranayam, breathing, how you need to breathe, something which is very important. Pratihar, you have to, all your thoughts which are hindering you from concentration, you need to take them away. Think of being a student. All these things, they are not only, अरे हमने क्या करना है, योगा है, योगियों का काम है. No, every one of us in way of life, we have to, talk about this. Dharma, dhyan, dharma, samadhi, ultimate. All these are the various, uh, assets or the elements which we need to follow. And given a chance, if you give a chance to any teacher, the teacher has to speak. So Om has given me a chance to speak, so encroached into, or I would rather say trespassed into the field
which Mr. Tejasvi is going to speak on. But I think, thank you, Neha. Once again, I'm not thanking Mr. Tejasvi. I'm thanking Neha more than Mr. Tejasvi for bringing him to all of us so that we can listen to him and imbibe certain good things and celebrate the International Yoga Day. It's a matter of pride for all of us. Yoga, which has started from our country, has taken to such, it has crossed borders. And everywhere, if you go, you will find the first thing that you as an Indian, I remember, recently I visited France. The first thing people ask you is, आप योगा करते हैं? योगा के क्या? What are the benefits of yoga? How do you do it? What kind of yoga should we look into? These are the queries which every foreigner is having today, for which we have Mr. Tejasvi with us. And I would not stand between you and him. And thank you, Tejasvi ji, for coming here. All the students, your videos are not on, but the video of Mr. Tejasvi is on, and you can see the Tej on his face. And this Tej is, you should vie for having that Tej on your face too. Thank you, Tejasvi, for coming. I'll take this 1 minute. I will take this 1 minute. Thank you so much, ma'am, for sparing your valuable time and for your guidance, for your support. Thank you. That's all my love for all of you. Thank you, ma'am. May proceed on. Yes, I Om. would now request Mr. Tejasvi sir to please start with the lecture. ओम सभी को मैं नमस्कार. मेरी आवाज आ रही है आप तक? Yes, sir. क्लियरली आ रही है. बहुत बहुत धन्यवाद. पहले तो हम सेशन को प्रेयर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि योग में सबसे बड़ा महत्व है प्रेयर का दिया जाता है. तो प्रेयर के बाद मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा. ओम सहना भवतु सहनो भुनस्तु सह वीर्यकर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. सभी को मैं नमस्कार. स्वागत करते हैं आपका इस योग महोत्सव में और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि हमारा कल है 2022. आप सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं. आप जीवन में योग से जुड़ पाए, इसी उपलक्ष्य और इसी कारण से आज हम मिले हैं. और सबसे पहले जो मैं प्रोफेसर अलका मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर नेहा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. इनके माध्यम से मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला. नहीं तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता. और सभी कोऑर्डिनेटिव कमेटी का जिन्होंने बहुत अच्छे से मुझे कोऑर्डिनेट किया और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे अपनी बात रखने को दिया. ये दूसरी बार है कि मैं फैकल्टी ऑफ लॉ में आ रहा हूँ और मैं खुद भी फैकल्टी ऑफ लॉ में लॉ सेंटर में मेरा कॉलेज था. वहाँ से मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की थी और योग मेरा हमेशा से ही रहा है. लेकिन जब भी मैं फैकल्टी ऑफ लॉ में भी था तब भी मुझे योग के प्रति इतना प्यार मिला और मुझे नेहा मैम के साथ भी काम करने का मौका मिला. मैंने एक नेशनल सेमिनार का इनिशिएटिव लिया था. उसमें नेहा मैम खुद ड्राफ्टिंग कमेटी में थी, जिसमें भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, माननीय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जी खुद इस सेमिनार में आए थे और बहुत ही अद्भुत सेमिनार रहा था. और नेहा मैम हमेशा से इस तरह के इनिशिएटिव लेती रहती हैं और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाए, उनकी हमेशा ही कोशिश रहती है. इसके लिए मैं नेहा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. जितना अच्छा परिचय योग के बारे में आज अलका मैम ने दिया, मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हूँ. अद्भुत, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा. इतना डेप्थ नॉलेज मतलब अच्छे अच्छे लोगों को भी नहीं पता होगा. और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैम ने इतने अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया. लेकिन लोगों ने मुझे हमेशा के बाद कि तुम योगी हो, कहाँ लॉ में आ गए. लॉ वाले कहते हैं कि कहाँ लॉ में आ गए, योगा वाले कहते हैं कहाँ लॉ में चले गए. लेकिन मेरा एक उद्देश्य रहा है न्याय योग करके. जिस प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट योग के बारे में मैंने बताया, राज योग, भक्ति योग, कर्म योग, मंत्र योग, तंत्र योग, तमाम तरह के योग है. लेकिन मैंने खुद का योग डेवलप किया आज के आधुनिक समय में, जिसको मैं कहता हूँ न्याय योग. इसका सिंपल सा मतलब है क्योंकि मैं चाहता हूँ समाज स्वस्थ और सुरक्षित रहे. और स्वस्थ और सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, उसके दो ही तरीके हैं. स्वस्थ रहने के लिए हमें योग को अपनाना पड़ेगा, जो कि बहुत सिंपल सा माध्यम है जिससे हर कोई
राइट, फंडामेंटल राइट, इसकी जानकारी हो, कानून की जानकारी हो, क्योंकि मैंने देखा लोग गुमराह रहते हैं, डरे रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से लहर दौड़ी है पूरे विश्व में, पूरे देश में योग के प्रति, हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए, इस तरह से मेरी कोशिश रहती है कि कानून के प्रति जो हमारा संविधान है या अदर लॉज है उनके प्रति भी लोगों को जागरूकता बढ़े। इसलिए मैं दोनों टॉपिक पे तालमेल हमेशा बिठाने की कोशिश करता हूँ ताकि हर व्यक्ति जो है अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित महसूस कर सके। तो अलका मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये एग्जाम्पल जरूर लोगों को दूंगा कि आप अलका मैम को सुने, इतना अद्भुत उन्होंने जो परिचय दिया है योग का, अच्छे से योगी जो अपने आप को कहते हैं उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं होती है। तो आज का जो विषय मुझे सौंपा गया है योगा कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट, इसमें मुझे आपको योग की शुरुआत से लेकर अभी तक जो डेवलपमेंट जो भी इसमें रही है उसके बारे में बताना है। थोड़ा सा मुझे आपको अपने संघर्ष के बारे में बताना है और थोड़ा सा मुझे आपको कुछ आसन करके दिखाने हैं जो आम व्यक्ति भी कर सके। तो बात करते हैं योग की। योग है क्या? योग की डेफिनेशन देखा जाए तो हिरण संहिता, हठ प्रतिपिका, पतंजलि योग सूत्र, तमाम तरह के जो ग्रंथ शास्त्र आप देखेंगे उसमें योग की व्याख्या की गई है। लेकिन जनरली जो हम सुनते हैं वो यही है कि आत्मा से परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। योगा कर्म सुख और श्रम कार्य में कुशलता ही योग है। चैप्टर 2 भगवत गीता में इसका वर्णन आता है। उसी प्रकार से अपने शरीर और मन में संतुलन बनाने को भी योग कहते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हमारा मन कहीं और रहता है, शरीर कहीं और रहता है। जैसा अलका मैम ने बताया कि हम क्लास में बैठे हैं, हमारा पोस्चर सही नहीं रहता। अगर हमारा पोस्चर सही रहे, अगर हमारा कंसंट्रेशन रहे, तो इससे हमारी पढ़ाई में भी जो है मन लगेगा और उसमें भी हम उन्नति कर पाएंगे। तो आपके शरीर और मन में जो संतुलन बनाने का कार्य भी योग करता है। इसकी कई परिभाषा है, अलग अलग योगी ने अपने अपने तरीके से दी है। इसकी 3 परिभाषा मैंने आपको बताई। योग के महत्व लाभ से आज कोई अनजान नहीं है। इसके बहुत सारे लाभ हैं, जैसा कि मैम ने भी जिक्र किया। आपको मतलब मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपके केवल बॉडी को नहीं, स्ट्रक्चर को नहीं, बल्कि आपके कैरेक्टर को भी योग मजबूत बनाता है। क्योंकि आप यम नियम का जब पालन करते हैं, आप सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, अच्छे विचार रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका मन प्रसन्नचित रहता है, आप खुश रहते हैं। ऐसे कई वर्णन आएंगे, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन बात करते हैं कि योग की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। कहते हैं कि योग में जो योग के गुरु हैं, आदि योगी भगवान शंकर को कहते हैं, क्योंकि 84 लाख आसन है और वही भगवान शंकर जी हैं जो 84 लाख आसन को कर सकते हैं। और उन्हीं आदि योगी ने सब ऋषियों को ये योग का ज्ञान ट्रांसफर किया और इन सब ऋषियों ने अलग अलग क्षेत्रों में, विश्व में इसको फैलाया। और जब इसको विश्व में फैलाया तो लोगों ने योग के महत्व को उस समय में जाना। और इसका जो एविडेंस मैं कहूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है। कई सारे स्ट्रक्चर और तथ्य सामने आते हैं जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से योग हमारी प्राचीन सभ्यता रही है। तो ये, लेकिन जो ज्यादा साक्ष्य मिले हैं इसके भारत में मिले हैं और योग की उत्पत्ति को भी इसीलिए यहीं से माना जाता है। तो योग हमारी भारतीय संस्कृति से लेकर वर्षों की जो परंपरा रही है, ये आगे चल के जो है विकसित हुई और आज इसको समाज अपना रहा है। लेकिन जब इससे पहले जो भी ऋषि मुनि रहे थे उन्होंने अपने लेवल पे कार्य किया। स्वामी विवेकानंद जी ने, और आदमी समय में बात करें तो श्री रविशंकर जी, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी, गीता योगा फाउंडेशन से जगदी वासुदेव जी, ऐसे तमाम हमारे योग गुरु जो है जो योग को लेके वर्क कर रहे हैं। और योग के महत्व को समझाने के लिए बहुत पहले से प्रयास कर रहा है, लेकिन इसको विश्व स्तर पे कैसे रखा जाए कि पूरा ये हमारी संस्कृति को पूरा विश्व इसका लाभ ले सके। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि योग एक धर्म का नहीं है, एक हिंदुओं का नहीं है, केवल भारत का नहीं है। कोई भी मेडिसिन अगर बनती है, कोई भी ऐसी डेवलपमेंट होती है, वो पूरे विश्व के लिए होती है, विश्व के कल्याण के लिए होती है। और इसी कंसेप्ट को भारत लेके चलता है। सर्विस जनाए सर्विस सुखाए, तो सभी का भला हो, सभी सुखी हो, सर्जन हिताय सर्जन सुखाए के कंसेप्ट को लेके चलता है। वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है उसको ये लेके चलता है कि एक विश्व परिवार है, तो हमें पूरे विश्व को देना था। और इसमें जो सबसे बड़ा मित्रों जब बदलाव आया, आपको 27 सितंबर 2014 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशन में इसकी बात रखी और पूरे विश्व को बोला कि हम जो है योग दिवस का
आह्वान करते हैं, हम योग दिवस मनाएंगे। और तब उस वक्त लोगों ने योग के महत्व को समझा और योग को 193 नेशंस ने उस वक्त मान्यता दे दी। तो योग वहां से जो 2014 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसका एक मंत्रालय का 2014 में गठन हुआ। एक मंत्रालय जो कि डिपार्टमेंट था आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसी के अंदर ये आता था, जो आयुर्वेद और बाकी सारी चीजें हैं होम्योपैथी। लेकिन इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग से डिपार्टमेंट आयुष मंत्रालय का गठन किया। वो आयुष मंत्रालय जो कि वर्क कर रहा है 2014 से ही, और अभी तक उसने इतना अच्छा वर्क किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, पूरा डेवलपमेंट और पूरे कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपका AYUSH इसका फुल फॉर्म जो सिंपल सा है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो ये सारी जो चीजें फॉल करती हैं वो इसी डिपार्टमेंट में फॉल करती हैं, और ये उस चीज को लेके वर्क कर रहा है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनने लगा, पहला दिल्ली में मना, और जब इस तरह के मंत्रालय का गठन हुआ, तो बात आई कि पूरे विश्व में हम कैसे योग टीचर्स को भेजें जो योग को सिखा सकें। तो उसके लिए QCI का जो है कमेटी बनी। तो QCI कमेटी का जो वर्क है वो ये है कि वो योगा ट्रेनर का एग्जाम लेती है, और उसी हिसाब से योगा टीचर, योगा ट्रेनर की उपाधि, गुरु की उपाधि उनको देती है, और एक इंटरनेशनल उसको सर्टिफिकेट की मान्यता है। और उस सर्टिफिकेट के आधार पर जो है आप आने वाले समय में कहीं पे भी जाके वर्क कर सकते हैं। तो ये जो बिखरा हुआ था, क्योंकि ज्ञान जो है योग का वो सभी का अलग अलग है, सभी अलग अलग, लेकिन उसको एक जोड़ में कैसे लाया जाए, ये QCI काम करता है। और जो भी आप योगा ट्रेनर से सीखें, तो एक बार आप उनसे पूछ लें कि क्या आप QCI क्वालिफाइड है कि नहीं। तो ये भारत सरकार उनको एक ऑथेंटिकेशन कर देती है, एक मान्यता दे देती है। तो इस तरीके से कि कैसे योगा डे का स्टार्टिंग हुआ, आयुष मंत्रालय बना, इसमें QCI आया इस तरीके से। ऐसा ही योग में, जब योग की बात करें, योग परंपरा में, तो देवताओं ने जब भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु शरीर को में जो व्याधि है, बीमारी है, उसके लिए तो जो हमारे पास औषधि है उसके माध्यम से हम इनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन मन में जो विकार है, मन में जो काम, क्रोध, लोभ, वश, मोह, इस तरह की जो समस्या है, तो इसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए कौन सी औषधि है, इसके लिए क्या उपचार है। तो वहां पे भगवान विष्णु बताते हैं, योग के महत्व को बताते हैं। और ये जो योग का महत्व है, तो जो योग डिफरेंट शास्त्रों ग्रंथों से जो बिखरा हुआ है एक तरीके से, उसको महर्षि पतंजलि ने जोड़ने का काम किया, और उसको पतंजलि योग सूत्र का नाम दिया, जिसमें 4 पाद है, कैवल्य पाद, विभूति पाद, समाधि पाद, साधन पाद। तो उसमें इसको उन्होंने स्ट्रक्चर में जोड़ा, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे करके उसी तरीके से उनको जोड़ा, और 195 सूत्र दिए, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है उसी तरीके से सूत्र दिए, और एक योग को सिंक्रोनाइज वे में वो लेके चले आए, एक कोडिफाइड रूप में उसको लेके चले आए। और जो भी योग के इच्छुक हैं, योग के बारे में जानना चाहते हैं, योग के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वो पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन जरूर करें, क्योंकि इसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी कि योग करने से क्या होगा, योग चित्त वृत्ति में होगा, उसमें सारी चीजों का वर्णन है पूरा एक सिंक्रोनाइज वे में, और आप उसी का व्याख्या आगे आगे चल के अलग अलग ऋषि मुनियों ने किया है। और मैं ये कहूंगा कि जो ये धरोहर हमारी संस्कृति और जो ट्रेडिशन हमें योग के करने के बताए गए हैं, उसी ट्रेडिशन को हम फॉलो करें, ना कि जो वेस्टर्नाइज इसको किया जा रहा है आज के समय में। एक अलग टेक्निक और तमाम तरह की डेवलपमेंट उसमें लाई जा रही है, उन पे आप ध्यान ना दें, और योग गुरुओं के सानिध्य में योग करें। अब ये आपने जाना कि कैसे योग का इतिहास रहा और कैसे पतंजलि योग तक बात आई। अब हम बात करते हैं कि अब योग में क्या चल रहा है, और नया जो एक ट्रेंड आया है योगासन का, जिसके जैसे ओम जी ने बताया कि मैं 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा हूँ योग में, तो वो आखिर क्या है, और उसमें दिव्यांगों के लिए, हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। देखिए, 40 से 50 वर्षों से योगासनों का कंपटीशन हो रहा है। वो कंपटीशन में क्या होता है कि आपको डिफरेंट आसन करने के लिए जजिस बोलते हैं, और जो उसमें बढ़िया आसन करते हैं, जिनके पोस्चर परफेक्ट होते हैं, उसके आधार पे उनको नंबर मिलते हैं, और वो जिनके नंबर ज्यादा होते हैं उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की कैटेगरी में लाया जाता है। तो इसकी जो डिमांड है कि इसको
में नहीं लाया गया है, योग आसनों को जो है कंपटीशन में लाया गया है, क्योंकि आसन जब आप चक्रासन सभी कर रहे हैं, 10 लोग चक्रासन कर रहे हैं, ये बड़ा आसान हो जाएगा जज करना कि किसने बढ़िया चक्रासन किया है। तो उसी तरीके से जजमेंट होती है। और ऐसा क्यों किया गया, सवाल ये होता है कि आखिर इसको कंपटीशन क्यों बनाया गया, क्योंकि इंडिजिनियस गेम का इसको नाम दिया गया, क्योंकि योग केवल वही लोग करते थे जिनकी उम्र 30 से ज्यादा है या 40 से ज्यादा है या इनको बीमारी हो गई है। जैसे अलका मैम ने बताया कि हम योग क्यों करें, क्या करना चाहिए, इससे क्या फायदे हैं, तो इस तरह की व्याधियां और इस तरह के कंफ्यूजन लोगों के मन में बने हुए थे। तो योग की जो संस्कृति है वो बचपन से ही बच्चों के अंदर एक बीजारोपण का काम कर रही है कि बचपन से ही लोग योग से जुड़ पाए और आने वाले समय में अपनी धरोहर को अपना पाए, अपनी संस्कृति को अपना पाए। तो जब योगासनों का कंपटीशन होता है और 9 वर्ष से 27 वर्ष तक के लोगों के लिए भी कंपटीशन का जो है पूरा सिलेबस तैयार है, तो ये 9 वर्ष की आयु से जब बच्चा योगासन करता है, खेल करता है, देश के लिए मेडल लेके आता है और अपने आप को स्वस्थ रखता है और आने वाले समय में उसे और भी एजुकेशन के क्षेत्र में रिजर्वेशन मिलना, नौकरी के क्षेत्र में रिजर्वेशन मिलना। मैं बताना चाहूंगा, अभी 2-3 दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है कि 3 ग्रुप की जो नौकरियां हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें योगासन प्लेयर को जगह मिलेगी अगर वो इसके आगे है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है योग के क्षेत्र में। तो उसी तरीके से ये आसन से जब बच्चा जुड़ जाता है तो ये इस तरीके से आने वाले में जॉब पाना, योगा टीचर बनना, जैसे भर्ती जो वैकेंसी योग के क्षेत्र में हर एक स्कूल में एम्बेसी में जो निकल रही है उस तरह की अपॉर्चुनिटी को पा सकता है और अपनी भारतीय संस्कृति को बचा सकता है। अभी मैं बताना चाहूंगा कि हाल में ही खेलो इंडिया में भी योगासन को जगह दे दिया गया है और खेलो इंडिया 2021 जो कि पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुआ है, आपको 4 से लेकर 13 जून 2022 तक, तो इसमें योगासन ही एक हमारा गेम रहा और उसमें मैं एज अ जूरी मेंबर था, एज अ जज था और मैं पहला ऐसा दिव्यांग था जिसको ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि मैं लोगों को जज कर पाऊँ। मेरे जैसे और भी 30 से भी ज्यादा जज उसमें मौजूद थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है और योग के लिए उपलब्धि की बात है। लेकिन मैं जिस लिए जाना जाता हूँ उस संघर्ष के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, योगासन जो 40-50 वर्षों से चल रहा था उसमें दिव्यांगों की कोई कैटेगरी नहीं थी और ये बहुत बड़ी समस्या थी। जब मैं 2009 से योगासन कंपटीशन के क्षेत्र में आया तो मैं खेलने गया तो मुझे पता चला कि इसमें दिव्यांग कैटेगरी है नहीं, तो पार्टिसिपेट करें तो कैसे करें। तो मुझे बड़ी ह्यूमिलेशन डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, मुझे सामान्य लोगों के साथ पार्टिसिपेट करना पड़ा और मैं करता भी रहा। कई जगह मौका मिला, कई जगह मौका नहीं मिला, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर ये एक मेरा दृढ़ निश्चय था कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी है और मुझे दिव्यांग भाई बहनों के लिए भी, तो बचपन में मुझे ये अनुभव हो गया था कि दिव्यांग भाई बहनों के लिए भी इसमें कैटेगरी आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं वर्क करता रहा और मैं बता दूं आपको, मुझे भले कंपटीशन में जगह मिले ना मिले, मैंने इसकी परवाह नहीं करी। टीवी शो के माध्यम से, न्यूज मीडिया के माध्यम से, मेलों में, डांस के क्षेत्र में, जहां जहां पे जैसे मंच में तो कोई सा भी मंच हो, मुझे तो योगासन करके लोगों को दिखाना था ताकि लोगों की जागरूकता इसके प्रति बढ़े कि दिव्यांग भी योग कर सकते हैं। मैं तो आपको बता भी नहीं सकता कि मैंने ऐसे ऐसे मंचों पे परफॉर्मेंस किया जहाँ पे मुझे करना भी नहीं चाहिए, बस इसलिए इंडिया में जुनून था कि योगासन को लोग समझे और ये समझे कि दिव्यांग भी योग कर सकते हैं। इसी तरीके से ही मैंने योगासन से जो इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उनमें पार्टिसिपेट किया। तो मैंने 2011 में गोल्ड मेडल लिया, 2012 में हांगकांग में भी गोल्ड मेडल लिया, 2014 शंघाई चाइना में भी मैंने सिल्वर मेडल लिया और 2015 में मोस्ट फ्लेक्सिबल हैंडीकैप योगा चैंपियन का जो है खिताब इसमें हासिल किया। लेकिन अब एक नया ट्विस्ट आया है इसमें, वो ट्विस्ट ये है कि 17 दिसंबर 2020 को भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने और खेल मंत्रालय ने योगासन को स्पोर्ट्स की मान्यता दे दी। जब योग आसन को स्पोर्ट्स की मान्यता मिल गई तो हम तो ठहरे वकील। हमने कहा जब योगासन स्पोर्ट्स बन ही गया है तो हमारा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का सेक्शन 30 ये कहता है कि जो भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी हो इसमें इंश्योर किया जाए कि दिव्यांगों का इसमें पार्टिसिपेशन हो। तो मैंने तीनों मंत्रालयों को पत्र लिखा, आयुष मंत्रालय, सोशल एम्पावरमेंट आयुष मंत्रालय। मेरी बात शायद वहां तक नहीं मुझे कोई रिप्लाई आया, लेकिन मेरी बात जो इसकी फेडरेशन जो रिकॉग्नाइज्ड है नेशनल योगासन फेडरेशन, उसके सेक्रेटरी जनरल तक पहुंची, डॉक्टर जयदीप आर्या जी तक, और उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने मुझे बोला कि ये जो विषय है बहुत ही
गंभीर और बहुत ही अच्छा है, आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो मुझे इस फेडरेशन में पैरा योगासन जो स्पोर्ट्स है उसमें मुझे ज्वाइंट डायरेक्टर का पद दिया गया और मुझे ये बोला गया कि आप दिव्यांगों के लिए योगासन की ड्राफ्टिंग करें कम्युनिटी के साथ मिलकर कि वो कौन कौन से आसन कर सकते हैं। ये कार्य हमने किया और मुझे बताते वक्त आपको बहुत खुशी हो रही है कि हमने इसको टनकपुर में फील्ड चैंपियनशिप करवाया केवल दिव्यांगों के लिए। और आने वाले समय में दोस्तों दिव्यांग भाई बहनों के लिए भी योगासन के क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, खेलो इंडिया और ओलंपिक में भी इसकी संभावना है कि आप तक जा सकते हैं। और जॉब की मैंने इसके बारे में बता दी और कॉलेज में भी इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ये अभी तक का आधुनिक डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट रहा है जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया। तो ये कुछ डेवलपमेंट रही और मैंने अपना साथ में साथ परिचय भी दे दिया और योग की स्टार्टिंग कैसे है वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब आते हैं कुछ आसनों के ऊपर और कुछ मुद्राओं के ऊपर जो हर दिव्यांग भाई बहन कर सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ जो मिथ बनी पड़े हैं, कुछ जो भ्रांतियां बनी पड़ी हैं उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं। आज के समय में जो प्रचार हो रहा है कि आसन आसन आसन, टीवी पे भी आपको आसन दिखता है या प्राणायाम दिखता है या मेडिटेशन करते दिखता है। तो योग केवल मेडिटेशन नहीं, योग केवल आसन नहीं है, योग केवल प्राणायाम नहीं है, योग कोई धर्म नहीं है। इसको कई बार धर्म से जोड़ दिया जाता है कि हम तो मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन है या सिख है। योग कोई धर्म नहीं है, ये सभी के लिए है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी सुखी है, सभी का भला हो, इसके लिए है योग। तो ये समझना पड़ेगा। तो योग है क्या? जैसा अभी अलका मैम जी ने बताया यम नियम अष्टांग योग पतंजलि योग के बारे में, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 8 जो अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 मिला के योग बनते हैं और इसी चरण में आपको चलना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर ना करें और सीधे 5वें सेमेस्टर में पहुंच जाए, तो ये तो कोई भी नहीं जाएगा। उसी तरीके से आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 प्रकार की जो अंग है इसको जोड़ को इसी को योग बोलते हैं। क्योंकि योग का मतलब ही है जोड़ना। ये संस्कृत वर्ड से निकला है युज, और हिंदी में भी योग 10 का 10 योग कितना हुआ भी, तो ये जोड़ना है। तो जिस तरीके से योग ने पूरे भारत से हमको जोड़ लिया है उसी तरीके से ये 8 अंग भी हमें जोड़ते हैं और इसी 8 अंगों को योग का नाम दिया गया है। तो फिर ये भ्रांति तो आप बिल्कुल छोड़ दें कि भैया हम झगड़ा करें, लड़ाई करें, गलत काम करें और फिर आके आसन प्राणायाम करें और स्वस्थ हो जाएं। ऐसे आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। तो यम में भी 5 प्रकार है, नियम में भी 5 प्रकार है, प्राणायाम भी 3 प्रकार के 8 प्रकार इस तरह से बताए गए हैं, आसन जो है 84 लाख है। तो हमें इस स्टेप बाय चलना है। तो हमें क्या करना है? सच बोलना है, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, साफ सफाई रखनी है, अच्छा व्यवहार रखना है, अच्छा विचार रखना है, अच्छा भोजन करना है। योग में आपको दिनचर्या भी कैसी होनी चाहिए, आपका भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन सात्विक ना हो, भोजन सात्विक हो, ठीक है। इस तरह का भी वर्णन आता है। केवल योग में कि हम फिट हो जाए, हम बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए, ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता। योग को अपने जीवन में धारण करना पड़ता है। जब तक आप उसको धारण नहीं करेंगे, उसका निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे, दृढ़ संकल्प नहीं रहेगा, तो फिर कोई महत्व नहीं है, फिर आप योगी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि काम क्रोध लोभ रस मोह को त्याग कर कोई योगी होता है। मतलब हम फिट हैं, हम स्वस्थ हैं, अच्छा आसन करते हैं, अच्छा दिखते हैं, लेकिन हम औरों से बदतमीजी से बात करते हैं, तो फिर आप योगी कैटेगरी में नहीं आएंगे। और यदि योग का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति और खुद परमात्मा के में लीन हो जाना, वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारा कानून भी जो है यही बताता है उन चीजों को रोकना। कोई कानून थोड़ी ना कहता है कि आप चोरी कीजिए, लड़ाई कीजिए, वहां तो बोला गया है सत्य हो जाए सत्य की विजय हो, तो वो भी यही योग सिखाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा सिखाती है। जो भी कानून आप देखिएगा दूसरों के बेनिफिट के लिए बना है, तो योग भी जो बना है आप लोगों के बेनिफिट के लिए बना है। तो कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं आता कि आप ऐसे कार्य करें और फिर योग करना स्टार्ट कर दें। मतलब आपको जब बोला गया कि भाई हल्का भोजन कीजिए, तो आप खूब तामसिक भोजन, आप नशा और तमाम तरह की चीजें करते हैं और अगले दिन आप योग करते हैं, तो इस तरीके से आपको योग का लाभ नहीं मिलेगा।
संयम नियम के साथ योग करें। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिव्यांग भाई बहन, मैं उनके लिए कोशिश कर रहा हूँ और भारत सरकार के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए योग सूत्र और योग की कुछ किताबें जो है उसको ऑडियो में, वीडियो में और स्क्रीन रीडर के माध्यम से, ब्रेल के माध्यम से कन्वर्ट किया जाए, ताकि आप लोगों तक भी योग का जो महत्व है वो पहुंच सके और आप भी से लाभ ले सकें, और जो आसन है उसको भी आप बहुत अच्छे समझ सके और आप जो है इसमें ओलंपिक तक आप लोग जो है इसमें ओलंपिक तक जा सके। यही आवाज आने की बीच में कट गया था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू कारण, लेकिन आप लोग भी इसमें ओलंपिक तक जा सके। मित्र, अब मैं बताना चाहूंगा कि योग कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो योग करने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको इस तरह के ढीले कपड़े पहन के रखने होंगे। सफेद वस्त्र पहन सकते हैं, ढीले कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपने ढीले वस्त्र नहीं पहनेंगे तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और आप ध्यान रखें, योग करते वक्त हमेशा आपको आसन के बिछाकर ही योग करना है। जैसे कि आप देखिए पीछे मैंने ही योगा मैट बिछाया है, तो आसन का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस तरह से आप आसन लगाए, ढीले कपड़े पहने और खाना खाने से 4 घंटे के बाद आप योग करें। सुबह में करें, शाम में करें, खाली पेट करें। बहुत भूख लग गई तो हल्का सा लिक्विड ले लें, ऐसा नहीं कि बहुत पेट भर खा लिया और योग करने लगे, तो इससे और आपको जो है विकार उत्पन्न हो जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग योग करना चाहते हैं, तो अगर आपको किसी प्रकार की सर्जरी हुई हो, किसी प्रकार की बीमारी हुई हो, किसी प्रकार के आप मानसिक रूप से जूझ रहे हैं, मेडिसिन चल रही है, तो ऐसी अवस्था में इसको बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपका नुकसान हो सकता है। आप अपने डॉक्टर की एडवाइस और योग गुरु के एडवाइस और उनके मार्गदर्शन में ही, उनकी परमिशन से ही योग करें, क्योंकि योग में आपको आसन करने पड़ेंगे और उन आसनों से क्या होता है, बॉडी में खिंचाव आता है, तनाव आता है, तो उस समय में आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, बीपी तरीके से है एकदम से, कभी आसन ना करें। ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं सकते, उसके लिए जो आसन बताए गए हैं, हार्ट के लिए, बीपी के लिए, अर्थराइटिस के लिए, इन सब के लिए जो बताए गए हैं वो आसन जरूर करें, लेकिन कहीं से निषेध है कि ये बिल्कुल नहीं करना है, इससे नुकसान हो सकता है। तो जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है कि अभी कोई बीमार है, किस वजह है, क्या है, तो उनके लिए ये गाइडलाइन है। और अगर आपने खाना वाना खा लिया है, अगर आपने टाइट कपड़े पहने हैं, तो ऐसी अवस्था में योग ना करें। और महत्वपूर्ण बात कि योग जो है आपको खुली वातावरण में ही करना चाहिए, मतलब पार्क में करें, टेरेस पे करें, छत पे करें, और अगर आप कमरे में कर रहे हैं तो कमरे की खिड़कियां खोल दें ताकि साफ हवा वातावरण आ सके। योग के बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है, एक दिन में तो इसका पूरा हो ही नहीं सकता, लेकिन आप ये समझ लें कि हमारे जीवन से लेकर मरण तक योग जो है हमसे जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गर्भ अवस्था में होते हैं तो आप समाधि की स्थिति में होते हैं, मतलब जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तो आपका शरीर तो होता है, लेकिन आपको दुनिया का कुछ पता नहीं होता, ये समाधि की अवस्था है। और जब आप पैदा होते हैं तो आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो इसी को रेचक पूरा कुंभक कहते हैं। सांस पे सांस चलता रहता है, किसी में सांस बंद हो जाएगी, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, आप शवासन में आ जाएंगे। तो योग तो हमारे जैसे कैसे कानून से जुड़े हुए हैं। हम भाई रास्ते पे जा रहे हैं, रेड लाइट क्रॉस किया, साइन हो गया आपके पास, आप एक घर ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी के कागज, तो कानून भी हमसे जुड़ा हुआ है। हम संविधान के दायरे में ही रहकर जो राइट हमको दिए गए उसके आधार पर वर्क कर रहे हैं, उसी तरीके से योग भी हमसे जुड़ा हुआ है। हमें लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन योग से हम जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कॉम्बिनेशन आप लोगों की इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक लॉ का विद्यार्थी हूँ और एडवोकेट भी हूँ, तो आप इस चीज को समझ पाए कि भाई आखिर ऐसा क्या है। और संस्कृत के भी कुछ वर्ड जो है हमारे जैसे सत्य में जैसे कोर्ट में यूज किया जाता है, गीता पे हाथ रखवाया जाता है, और किस तरीके से श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग के बारे में बताया है। तो ये हमारी संस्कृति है और ये सब एक इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो हम ये सब सार है, तो योग हर जगह है। कहने का मतलब ये है कि योग हर जगह है, जन्म से लेके मरण तक जो है योग है। अब बात करते हैं कि योगासन और योग की प्रैक्टिस आप योगा डे के दिन कैसे सेलिब्रेट करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पे कॉमन योगा प्रोटोकॉल डाला हुआ है।
और वो हर भाषा, हर लैंग्वेज में है। तो जब कल योगा डे बनेगा, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 जब कल बनेगा और आप उसमें सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आप किसी संस्था या डिपार्टमेंट या अन्य जगह रजिस्टर करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप टीवी के माध्यम से भी इसको देख के कर सकते हैं। वो इसलिए आप कर सकते हैं क्योंकि वो आसन और जो भी प्रोटोकॉल बना है वो इतना आसान है और आप लोगों की परेशानियों को देखते हुए बनाया गया है। और वो वेबसाइट पे भी है, वीडियो भी है, उसको हर तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया है ताकि हर व्यक्ति समझ के उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके। और वो इतना हार्ड भी नहीं है, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जो योग करते हैं वो ये संकल्प ले कि जीवन भर योग करेंगे और स्वस्थ रहेंगे, और जो योग नहीं करते और कल से ही स्टार्ट करना चाहते हैं या मेरी बातों को सुनकर एक भी व्यक्ति स्टार्ट करना चाहता है, तो ये संकल्प ले कि हम जीवन भर योग करेंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में तो कुछ नहीं होता, ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होता। अगर आप भी बोलते कि आज हमने आसन कर लिया या जिम कर लिया या कोई एक्टिविटी कर ली और हम इसमें एक्सपर्ट हो गए, तो किसी का लाभ नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर, आई विल नॉट से परफेक्ट, बट प्रैक्टिस विल मेक मैन बेटर। तो आप सभी अच्छे हो पाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो पाएगा, और अपने खान पान का भी इससे बहुत नियंत्रण रखें, ध्यान रखें। मैं आसन तो मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने भोजन किया है, नहीं किया है, कौन कैसे अवस्था में बैठा है, सभी लोग लेक्चर सुनने के लिए बैठे हैं। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये इतना कह सकता हूँ कि आप लोग जो मेरे साथ थोड़ा सा, अगर सभी लोग आप अपना वीडियो ऑन कर लें और मैं आप लोगों को देखता हूँ जो जिन तक मेरी बात पहुँच पा रही है, तो मैं आपको छोटा सा जो है एक प्राणायाम और एक मेडिटेशन का कुछ लाभ दूँ। तो मेरी गुजारिश है सभी से, ताकि सब जो है अपना वीडियो ऑन कर लें, अगर मेरी आवाज आ पा रही है। तो लगता है कि सभी लोग सभी अवस्था में नहीं बैठे हैं और इस अवस्था में भी नहीं है कि वो वीडियो ऑन कर पाए, लेकिन फिर भी चलिए कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग बिल्कुल देखिए, कुछ लोगों ने ऑन भी कर लिया है, मतलब मैं इतना कोई हार्ड नहीं करवाने वाला हूँ, चिंता ना करें, बहुत सिंपल सी चैंटिंग करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे सभी ने वीडियो, लगता है मेरी बात पहुंच रही है, ऑन करना स्टार्ट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, विवेक जी, ओम जी, सभी का अपना कैमरा ऑन करने के लिए। हमारे मनमोहन जी शायद, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हार्ड नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं आप लोगों की तरफ खुद एक वकील हूँ, विद्यार्थी हूँ और मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को। तो बस मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग ये मुद्रा बना लें, ऐसे आप देख पा रहे हैं मुझे, अपनी तर्जनी इंडेक्स फिंगर और थंब को ऐसे टच करने, और इसको आप अपने जो है इस पे इसको रख लें इस तरीके से। हाँ, रख लें, मतलब हिप पे रख लें, आप अपने पैरों पे रख लें, हाइट पे रख लें, और आंखें बंद करके मेरे साथ आप 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। और उच्चारण कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आप लंबा गहरा श्वास लेंगे इस प्रकार, और जब पूरा श्वास भर जाएगा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसके बाद धीरे 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 बहुत हल्का सा करके आपको छोड़ना है। और कैसे छोड़ेंगे? तो समझ गए आप लोग? इस प्रकार से आपको छोड़ना है। ओम का महत्व बहुत है, पहले इसका प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, इसके बाद बताएंगे। तो करते हैं, सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें, लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें ओम की चैंटिंग के साथ। फिर लंबा गहरा सांस लें फिर एक लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे आंखों को
के वातावरण को महसूस करें। दोस्तों, ओम का इतना महत्व है, इतना महत्व है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसमें 3 प्रकार के जो अ उ म आता है, इससे आपके से आपके जो पेट संबंधी जितनी बीमारियां खत्म, उससे आपकी चेस्ट स्टेबिलिटी जितनी बीमारियां खत्म, मौत से जब आप करते हैं जो वाइब्रेशन होता है आपके मन से रिलेटेड जो एंजाइटी, डिप्रेशन, तमाम तरह के थॉट, नेगेटिविटी जो आ रही है, ये सब खत्म, शांत हो जाता है। लेकिन इसका अभ्यास चाहिए। तो मैं 3 ये तो हमने आप मेरी आवाज आ रही है, ये सब हमने अभ्यास किया तो इससे कई सारे रोग विकार खत्म होते हैं। और योग में ओम का बहुत बड़ा महत्व है। और ये जो ध्यान मुद्रा मैंने आपको दिखाया, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है कि मैंने हर जगह आपको ये करते हुए देखेंगे, क्योंकि ये आत्मा से परमात्मा के मिलन का सिंबल है, इसलिए ये हर जगह आपको दिखता है कोई भी व्यक्ति इसको करता हुआ। आसन तो बड़े कठिन हो जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग उस अवस्था में नहीं है, सभी लोग कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। ये आप होम सेंटिंग का अभ्यास कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान की मुद्रा में भी अगर जाना चाहें तो ध्यान भी आप कुछ प्रकार से कर सकते हैं कि आप इसी मुद्रा में बैठ के अपने अपनी जांघों पे इसको रख के आंखों को बंद करके और आप जो जहाँ पे मैंने चंदन लगाया है यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और कोशिश करना है कि जो थॉट्स है वो ना आए। आ भी रहे तो कोई बात नहीं, वो अपने आप चले जाएंगे। ध्यान क्या है, इसको ऐसे समझिएगा जैसे मैं आपको अभी बोलूं सो जाइए, तो इसमें से कोई भी नहीं सोएगा। क्यों? क्योंकि नींद नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ और किसी को नींद आ जाए तो सो जाएगा, लेक्चर चलेगा तब भी सो जाएगा, मतलब दुनिया लगी पड़ी अपने में, लेकिन वो खो गया। तो इसी तरीके से ध्यान है, वो जब लग जाता है तो ध्यान में आप चले जाते हैं। लेकिन हम जितना मन को बोलेंगे चल जा ध्यान कर ले, ध्यान कर ले, ओम चैंटिंग कर ले, ओम चैंटिंग कर ले, वो उतनी नखरे करेगा, उतनी आपको बार बार परेशान करेगा। लेकिन जब ध्यान लगना होगा, अभ्यास करते रहेंगे तो फिर आप उस अवस्था में आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने जानकारियां दी हैं बहुत अच्छी लगी होंगी। और नेक्स्ट टाइम मैं ये कोशिश करूंगा कि आप सबसे फिजिकली मिलकर आपको योग कराया जाए, क्योंकि आप लोग के पास कोई बहाना नहीं होगा। किसी उस वक्त मेरे साथ 10 से 15 लोग रहते हैं जो आप लोग को पकड़ पकड़ के आसन करवाएंगे और वो क्रियाएं करवाएंगे, चाहे किसी प्रकार की कैटेगरी हो, दिव्यांगता हो, किसी प्रकार का हो, तो आप लोग को आनंद भी आएगा। और जब आप एक दूसरे को ग्रुप में करता हुआ देखेंगे तो आप बहुत अच्छा अनुभव भी करेंगे और आप बहुत बहुत आनंद आता है मित्रों। तो बस आप लोगों से विनती है कि बस आप हाथ जोड़ लें और एक शांति पाठ पढ़ेंगे और उसके बाद मैं अपनी तरफ से इस सेशन को समाप्त करूंगा। तो आप बस मंत्र को सुनिएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, ऐसी कामना के साथ आप लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फैकल्टी ऑफ लॉ का, सीएलसी का और सभी मेरे मित्रों का, व्यूअर्स का जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जहाँ पे भी देख रहे हैं, सभी अतिथि गणों का, मेरे मित्रों का इतना प्यार, इतना आनंद मुझे मिला है, आज मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। बहुत खुशी होती है जब अपने अलुमनाई के लोग बुलाते हैं और इतना प्यार देते हैं। और आप लोग ऐसी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। Thank you so much, sir. Thank you so much. I would now request Dr. Neha ma'am to please uh, give the vote of thanks. Neha ma'am, please. Am I visible? No, ma'am. No, ma'am. I think there is some technical glitch in my laptop. So because of that, it was, very tough to log in as well. I was facing issue. First of all, a very good evening to all of you. On behalf of all my students, my enabling unit, my teacher members, I'm glad to be here to express my vote of thanks. And a special thanks, first of all, to our
chief guest, to our dignitary today, Tejasvi Sharma. Tejasvi, it is always a wonderful experience to work with you. As you mentioned earlier, also we had together a national seminar also, and this time also, like always, your thoughts have truly inspired us, all of us, and you made us learn that yoga is one of the most required thing or essential thing for our life. And moreover, disability, non-disability is not a bar for it, and you are a living example of that. You have won so many awards, championships in that, and you are always a inspiration for all of us. I will take this opportunity to give my special thanks to our professor in charge for her always unending, untiring support, encouragement. Thank you, ma'am, for your valuable time, for your support. I have no words for it. Thank you. And here I will take this opportunity for my enabling unit students as well, whose day and night efforts made it possible to have the yoga celebration. And we have Tejasvi with us. Thank you, Om, and everyone in my unit, every student. Doesn't matter, I'm not able to count everybody's name here, but everybody's presence, effort is very appreciated. Thank you. And at same time, I would like to take this opportunity for my other faculty members, my colleagues who are here, supported us by their presence. Thank you. Thank you, Tejasvi. Looking forward for more collaborations. Thank you. Thank you so much, Neha ma'am. Once again, the enabling unit thanks Mr. Tejasvi Sharma and Dr. Alka Chawla ma'am for giving us their valuable time. We are inspired by the feat that sir you have achieved and the sincere attempt that made you override the impression that yoga is only for the Divyang. We also saw how you used your knowledge of law to claim your rights under the PWD Act. So we are looking forward to further collaborate with you and organize such events in the future. Thank you so much, sir, and thank you so much, Alka ma'am. Uh, Thank you, And ma'am. Neha, you're visible now. Yes, finally, after what of this. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, Tejasvi. Thank you, my all team member, Thank you, student ma'am. member, teachers member. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I would also like to thank our audience for joining us, and we are just going to drop the link for the feedback form, and also the social media handles. Please fill out the forms and follow us for future events that we'll be conducting. Thank you so much. Oh, oh, Namaskar. I had to say something Yes, uh, sure. about the experience of this session, actually. Yes, yes, please. Please. Yesterday when I heard about this conference, that why, then I had a question in my mind that why we are going to attend this kind of session in law, because law talks about judgments and judgments, judging something, and yoga itself, it's like non-judging thing, openness, like calmness and all. So then I had a research about that, why it is more important for a lawyer to practice yoga, because see, it gives you like to open both your section of your mind, like analytical section and as well as the creative section. When we listen to the client or listen to the judges or the opposite counsel in the court, we had this mind that like we are enriched a level that we have opened both of our senses, creative and analytical too. So I think yoga there itself very good for for the practicing advocates and lawyers. And today's session is very good. Like I want to thank everyone. I'm a student third year, section H, and I would like to thank everyone that this session is literally helpful for me. Uh, Thank you. That's Thank you all. so That's much. all. Thank you for the feedback. Thank you. Thank you for encouraging us, Vinay. Thank you, ma'am. Thank you so Now much, we ma'am. shall now end the session. Yes, sure. Thank you.
Hello.